Good evening, everybody. Greetings. Good evening, and welcome to the Wednesday meeting. I'm Shashidhar, your host. I welcome you all. So welcome Nitesh ji. कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे. Welcome Tony. Welcome Sanjeev ji. Welcome my friend Neeraj. I hope you are recovering fast to good health. Welcome Renu ji. Welcome Dr. Reema and welcome Amit ji. Hi. Namaste. Hi Neeraj. I hope you are absolutely fine. So just be participating as much as you can. I know, in fact, my friend Neeraj is recovering from COVID now. So he's just trying to get some motivation here. So all of us are there with you, Neeraj, to pray for you and wish you happy recovery, right? All right, good. So how are we? कैसा रहा पिछला हफ्ता? And जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए so that we can connect with each other and welcome Gunjan ji. Thank you so much, sir. Yes. So जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए and let's have some sharing. क्या चल रहा है लाइफ में, पिछला हफ्ता कैसा रहा and who is getting some breakthrough results, किसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं and कौन है जो अभी भी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही है, थोड़ी सी हार्डशिप्स चल रही हैं to get the desired results. So just have some sharing so that we set the ball rolling and then we will take on from there. Okay. और आज का जो हमारा टॉपिक है सबने पढ़ा होगा, हाँ सबको मालूम है क्या है आज का एजेंडा क्या है? Anybody who has read the agenda for today? Okay, चलिए एजेंडा की बात बाद में करेंगे, पहले कौन शेयर करना चाह रहे हैं? रेनू जी, रीमा जी, anybody who wants to share क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं लाइफ में, क्या चल रहा है as a healer, as a healing? Here today, many of you have received healing from me, so are there as a healies. You can share your benefits. And many of you are also in the healers group, huh? So welcome and share some experiences of how the healing is happening in your life. लोगों को heal करना शुरू किया है या self healing चल रही है, कुछ भी share करिए, so we can have some kind of an understanding so that there are many people who have come after some time, so they can also connect. ठीक है जी, right. तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं कुछ तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और अगर डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी तरफ से तो अपने आप को म्यूट रखिए. That is perfectly fine. And when you want to share, you can unmute yourself and share. Is that fine? So I'm leaving that option to you. सब अपने आप को unmute कर सकते हैं. Yes. So who wants to go ahead and share? कौन share करना चाहेंगे? Tony, रेनू जी, रीमा जी, गुंजन जी, अमित जी and संजीव जी को मैंने freedom दी हुई है. Whenever it is appropriate, they will give their inputs. So that is fine. All the others, feel free to share whatever you are experiencing right now. कोई सवाल हो सवाल पूछ सकते हैं, कोई शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, घंटियां भी बजा सकते हैं. That's good. Okay, so who wants to say? सब साइलेंट मोड में है क्या आज? हाँ, मैं भी साइलेंट मोड में चला जाता हूँ. Let's have some introspection then. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? Who is the brave one? Who is the first one? First one needs always some extra courage, no? हर प्रोग्राम में यही होता है, पहले जो शेयर करने वाला होता है उसको थोड़ी सी ज्यादा करेज चाहिए होती है. आज हम we'll be talking about the 7 levels of human existence. Very good, Rima ji. So I know that you and are. Otherwise the week has been good and जैसे कहा था कि in gratitude, सुबह जब मैं walk जाती हूँ तो I really thank God that I can still go for a walk. Beautiful air, it's so cool. And जब वो सुबह ठंडी हवा लगती है तो पूरा दिन अच्छा ही बीतता है. And मतलब gratitude that still God has kept us happy, healthy and safe in these difficult times. And I think this positive attitude should carry. And I always feel कि वो healing energy हमारे आसपास है, इसलिए the virus is not able to penetrate. बहुत बढ़िया रीमा जी. And आपको in fact you are doing a great service to humanity. So I have many doctor friends and I keep expressing my gratitude to them.
So you come in that community who is doing a lot, working overtime rather in these times. Yeah. So big thank you to you and your community for whatever work you are doing. And उसके बावजूद आप सुबह उठ के वॉक पे जा पा रही हैं और अपने आप को एनर्जाइज कर पा रही हैं, पॉजिटिव रख पा रहे हैं और लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती. So wonderful Rima ji, that's great, right? Thank you. Yes. Okay, who else wants to share? So Dr. Sir, good Rima evening. ने- मेरे को मुझे बस एक मिनट मिला है बस. I'm just waiting for the oxygen cylinder to be picked up the Yes. machine. This week has been great और बहुत ups and downs के साथ, और मैंने डॉक्टर्स के साथ रहा हूँ, आप जानते हैं. बहुत बुरी हालत है. सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लास्ट ईयर भी सोच रहे थे कि ये कुछ और है, फैलाइए सारे पे कि इट इज डिफरेंट. वी हैव टू नॉट गो आउट फॉर एनी रीजन. आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट. मुझे 24 घंटा हो गया मुझे इस चक्कर में. आपसे मिलूंगा तो बताऊंगा. मेरी भाभी हॉस्पिटल में है, मेरी टीम के 14 में से 4 लोग हॉस्पिटल में हैं, और उनकी माताएं, पता नहीं मेरे साथ तो बात ज्यादा ही कुछ हो रहा है पिछले 5 दिन से. आई थिंक आपको मैंने भाभी के बारे में बताया था. तो एनीवेज, आप टेक केयर. Thank you very much. Yeah, that's fine. We all will send healing energies to you so that you get your job done and get your perfect desired results for your efforts, right? And you can serve the people, your friends and family at this critical moment. You can serve them and help them to recover fast. Okay. Yeah. Amit ji, you can continue with your job and be on the mute. That's perfectly fine. Yes. Thank you. All right, great. So that is Amit ji still running around and very busy in his life right now. Yes. So okay. So who else wants to share? Yes, Renu ji, welcome. Your video is on now. Yes, sir. हाँ, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं शेयर करना चाहूंगी. कोविड का टेस्ट कराया था, मैंने आपको बताया था सर. मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन हस्बैंड और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वो पॉजिटिव हैं. तो उसकी वजह से थोड़ा सा घर में एक डर वाला जो माहौल हो ना, वो बन गया, क्योंकि बच्चों के साथ में मैं हूँ और उनको संभाल रही हूँ. तो बहुत, और उसके अलावा जैसे ऑफिस में भी ग्रुप बना रखा है, और तो उसमें भी कभी किसी की जिसको हम जानते हैं उसकी भी से गुजर गए कल, तो उनको पढ़ के और वो सब देख के बड़ा अजीब सा है. लेकिन हीलिंग का भी और फिर भी एकदम जैसे लगता है कि एक सेकंड रेनू जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें अगर आपकी तरफ से कोई डिस्टरबेंस आ रही है, ठीक है? वरना जो बोल रहे हैं वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी. यस रेनू जी, कंटिन्यू. हाँ सर, तो वो सब करने के बाद भी इतना सब कुछ पॉजिटिव अपने आप को रखने के साथ भी किसी सेकंड पे एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमजोर पड़ रहे हैं. फिर कुछ टाइम लेना पड़ता है, दोबारा से समेटना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा है. बाकी ठीक है, अभी सही है सब. Good, Renu ji. So that's ठीक है. That is number one, that your report is negative. That is pretty good. And now you can at least support your family and do whatever you can do. And as a healer, you can definitely send healing energies to them so that they can recover faster, right? That is one. Second, आपने जो अभी fear की बात करी, तो आज जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे जाएंगे, we will be talking of levels of existence. क्योंकि सर हम लोग इसमें हैं, फिर क्यों वो एकदम वो सिंक वाली कंडीशन आती है, या इस तरीके का क्यों फीलिंग एकदम आती है कि जबकि ठीक है सब, अभी कोई हॉस्पिटल का कोई वो नहीं है, घर में है, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं एनवायरनमेंट में चल रहा है इतना या कुछ है कि वो एकदम किसी मोमेंट पे आके ना लगता है कि जैसे बिल्कुल दिल बैठ जाता है ना, फिर थोड़ी सा फिर अपने आप को फिर से कुछ चेंज करके माइंड फिर खड़े होना. तो रेणु जी, इसको इस तरीके से समझिए कि लाइफ को अक्सर हम देखते हैं मोमेंट टू मोमेंट. ये एक्चुअली मोमेंट टू मोमेंट नहीं है, इसको मानिए कि ये इवेंट टू इवेंट है. ओके, तो लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. एक्चुअली टाइम तो एक कन्वीनियंट मोड है समझने के लिए उसे, ठीक है? तो अगर लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, एवरी इवेंट इज लाइक, अगर आप क्रिकेट की भाषा में बोलूं, एवरी इवेंट इज लाइक ए लाइफ थ्रोइंग यू ए, लाइफ इज ए बॉलर इज बॉलिंग टू यू एज ए बैट्समैन. तो हर बॉल डिफरेंट होगी और हर बॉल पे आप बीट हो सकते हो या कुछ भी हो सकते हो, करेक्ट? तो ये बॉल नीचे कैसे रह गई, ये बॉल ऊपर कैसे रह गई, हमको पूछने का हक नहीं है. जब लाइफ बॉलिंग कर रही है तो यू हैव टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, करेक्ट?
and you can't say कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा ही है. Now परिस्थिति जो भी हो, जैसे हम पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, परिस्थिति जो भी हो, आपकी मनोस्थिति कैसी होगी, that will decide the outcome of life, which means your happiness or sorrow will depend on your मनोस्थिति. So if that is good, then let the परिस्थिति come whatever. जो भी परिस्थिति आएगी आएगी. तो भी सर अगर ये फियर इस तरीके का आ रहा है तो ये वीकनेस है ना आपकी, कि आप में फिर भी ये थॉट और ये इस तरीके से क्यों आ रही है इतना. तो क्यों आ रही है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, यही आज का एजेंडा है. सो वी विल कीप दैट एज यू मूव ऑन टू द मेन प्रोग्राम. यू विल फाइंड सम डिस्टिंक्शंस. तो उस डिस्टिंक्शंस को पकड़िए और फिर कुछ जो आपके लिए इनसाइट्स मिलती हैं उस पर काम करेंगे, राइट. बट इट इज नॉट अ वीकनेस, इट इज यस, इट इज लाइफ. एक बॉल अगर बीट कर जाएगी तो ऑब्वियसली पहला थॉट आएगा, अरे यार मैं बीट हो गया, दैट्स फाइन. अगली बॉल आ रही है, कंसंट्रेट ऑन द नेक्स्ट वन. ओके, बट आप डटे रहें, वो ज्यादा जरूरी है. मैदान छोड़ के भागना नहीं है, मैदान में डटे हुए हैं. और इसमें इस लाइफ की एक खासियत ये है कि आप कभी आउट नहीं होंगे जब तक आप छोड़ के बैठ नहीं जाते. तो यू विल नेवर लूज. लाइफ विल कीप थ्रोइंग बॉल्स एट यू एंड यू हैव टू कीप प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ. एंड यू, द बेस्ट थिंग इज दैट यू कांट गेट आउट. आप आउट नहीं होंगे, आपको खेलते रहना है. अब उसमें कैसे सक्षम होंगे और क्या आपको डिस्टिंक्शंस चाहिए, क्या इनसाइट्स चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे. तो बी इन द communication, be in this inquiry, and we will find out something good for you, right? Good, great Renu ji. All right, तो इस thought के साथ आगे बढ़ते हैं. Yes संजीव. Thanks Shashi, and well Renu ji जो उन्होंने शेयर करा, interestingly that's very important point. हम theoretical जितनी मर्जी बातें कर लें, practically all around माहौल जो चल रहा है उससे people are scared. Let's talk practically. और रेनू जी स्पेशली जब मैं आज आपका चेहरा देख रहा हूँ तो आई एम रियली लुकिंग कि आज आपका चेहरा जेन्युइनली डल नजर आ रहा है. नहीं तो आपका चेहरा कभी इतना डल होता नहीं है. Only thing which I can only say right now, because Shashi will take up this session today, और बहुत सारे पॉइंट निकलने वाले हैं इसमें से. इतने स्ट्रांग हो तो जो बीच बीच में आपको जो फियर आ रहा है, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट रेनू जी, ये आपका अपना है या कोई और डाल रहा है? News. What I feel. Absolutely, that's what I'm asking. Is this fear yours or is it any, ये कहीं बाहर से आ रहा है? क्योंकि जैसे अभी गुंजन जी ने बोला न्यूज़, टीवी न्यूज़, न्यूज़पेपर, आस पड़ोस वाले. अभी रेनू जी इंक्वायरी में रही है, अभी सिर्फ एब्जॉर्ब करिए. अभी कुछ नहीं बोलना रेनू जी, आपने अभी बोलना नहीं है, अभी सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन में रहिए. अभी जो संजीव बोल रहे हैं उस पॉइंट को बस अंदर जाने दीजिए. तो इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी इंटरेस्टिंगली जब ऐसा हो जाता है हमारे घर में ना, हमारे को बड़ा एक अंदर से लगता है मैं 10 जन से और बात कर लूं. 10 जन से किसी को भी फोन करके बात करते हैं, सामने वाला अलग से सहानुभूति और दिखाता है, वहां भी एक फियर और ऐड हो जाता है. तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड रेंजी कि आपने जिस स्ट्रांग तरीके से अपने पिलर को संभाल रखा है, उस स्ट्रांग पिलर में मेरा एक ही पॉइंट है कि ये आपके अंदर का जो फियर आ रहा है ये कौन डाल रहा है. फॉर श्योर आपके अंदर से ये 10% से ज्यादा नहीं होगा, 90% बाहर से आ रहा होगा. अपना 10% जेन्युइन है, लेकिन 90% फियर इस समय जो है ना वो बिल्कुल इनऑथेंटिक है. आपको वो कंट्रोल करना है. सिर्फ इतना ऑब्जर्व करिए और इतना सोचिए, एंड प्रोबब्ली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन बाय 9 o'clock you will be a different person today. Absolutely perfect, Sanjeev. So good food for thought for Renu ji as we move on, right? Okay, good. So you mean to say that as much time as we talk, the same thought, like हम sympathy gain कर रहे हैं एक से बात करके, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो वो energy collective होती जाती है. आप एक्चुअली में सिंपैथी गेन करना क्यों चाहते हो गुंजन? क्वेश्चन तो यही है. यू आर फीलिंग वीक विद इन. हाँ, मेरा ये बहुत देर से चल रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से. पहले नहीं, पहले मैं बिल्कुल लास्ट ईयर आई वाज ऑन क्वाइट मोड. आई वाज मोर इनटू माय ओन सेल्फ, बट सिंस फरवरी और मार्च मेरे ख्याल से मैं फिर से एक सिंपैथी मोड में जा रही हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अगेन द सेम थिंग्स व्हिच हैपेंड लास्ट years and years ago.
maybe. So So, Gunjan Gunjan ji, ji, what I would suggest is अभी हम जैसे जैसे इस topic पे चलेंगे, you will be seeing your life, correct? Yeah. So if we start now, so we will not be able to connect and take everybody along. So we will straight away move on to the main topic, main agenda, right? And as we move on, you will see your life there. Distinguish for yourself what exactly is, you know, running your life. That means what is that particular factor which is dominating and controlling your life. If you get hold of that, that will be a huge breakthrough, right? Yeah. So my effort today will be to explain to you and have a discussion on the levels of existence, where how we exist in our life. हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, इसके ऊपर जो हम insights लेंगे, that will help you, right? So be in the inquiry and we will look more into it, right? Okay, good. So everybody ready for it? Anybody who wants to share? Last and final call. Come on, anything you want to share? Okay, good. Yeah, so you just joined in, that's great. And Nitesh ji, anything you want to share? Otherwise we'll move on with the main agenda today. Is that okay? Oh, yes, sir, we can continue, sir. Perfect. Okay, great. Now let us have a quick recap on the 7 levels of existence. This we have already covered, by the way. It's not a new topic. ये हम पहले कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा दोबारा से एक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब लोग कनेक्ट कर लें इसके साथ. And then we will move on to the in-depth understanding of the levels of existence. Okay, so who would like to answer that? 7 levels of existence. कौन बताना चाहेंगे? Anybody who wants to make a bold attempt to say, list out the 7 levels. Number 1, number 2, इस तरीके से 7 levels को list out कर रहे हैं. कौन बोलेंगे? Anybody? Yeah. हाँ जी, रेणु जी, go ahead. Sir, physical body. Physical body, right? Number 1. फिर breath. Number 2, breath. Very good. फिर intellect, mind, man. पहले मन. हाँ, मन is basically emotion. You can say manas or emotion. Yeah, man. Next. बुद्धि, फिर चित्त, अहंकार और एक सेकंड सबको बता के चलना है ना. तो 3rd लेवल है हमारा मन या मनस या इमोशन. 4th लेवल इज इंटेलेक्ट और बुद्धि, ठीक है. 5th इज memory, चित्त या मेमोरी. वेरी गुड. ego, अहंकार. 6th इज ईगो, अहंकार. एंड 7th इज सेल्फ या सोल, जो भी आप मानना चाहें. एंड दैट इज हु वी एक्चुअली आर. करेक्ट. तो हम सब सोल हैं on a long journey that we all know. So we are spiritual beings here for a human experience, right? तो ये हमारी जर्नी है और ये 7 लेवल ऑफ हमारे एग्जिस्टेंस हैं. So let us look into and dwell into these 7 levels so that we can understand the working of our own working and how we are living the life effectively. That will help us, right? Okay, now everybody is aware of the first layer, physical body. सब लोग जानते हैं, सब लोग एक दूसरे को पहचानते भी वैसे ही हैं, बात भी वैसे ही करते हैं. ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं. एंड वी talk to each other. Like I know today, right now, the 10 people who are attending my program, I know you by your physical presence, body से, right? तो physical body सब लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. और लास्ट टाइम हम ये भी बात कर चुके हैं कि physical body, हमको लगता है कि we have full control on the physical body, but actually we are controlling only 2% or 1% of the actual functioning of the physical body. 99% of the functions which are happening in our body are not in our control. For example, आपका digestive system, आपका heartbeat, आपकी breathing या जो भी है, वो सब ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. And it is good that you are not controlling it, right? So even thoughts are like we are. Thoughts पे आएंगे, अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं. Okay. We will go step by step, right? Okay. So the first level is the body. तो बॉडी में हमारी फिजिकल बॉडी जो हमको दिखती है, जिसको हम अपना बोलते हैं, वो असल में 5 तत्वों से बना हुआ है, right? तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, इन 5 एलिमेंट से बना हुआ है. और इसमें इसकी जो फंक्शनिंग है उसको हम मैक्सिमम 1 या 2% से ज्यादा उसके फंक्शनिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग बाय ऑफ इट्स ओन, बाय द डिवाइन इंटेलिजेंस व्हिच इज रनिंग थ्रू अस. करेक्ट. तो ये हो गया बॉडी का. सेकंड लेवल आता है ब्रेथ. ब्रेथ में भी हम समझते हैं कि हाँ भाई हम प्राणायाम कर सकते हैं, तो हम ब्रेथ को अपना रेगुलेट कर सकते हैं. दैट इज ट्रू, लेकिन ब्रीदिंग हैपेंस ऑफ इट्स ओन. तो विद इन दैट मार्जिन ऑफ रेगुलेटिंग दैट ब्रीदिंग,
हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रीदिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल लगभग ना के बराबर है। और वो अच्छा ही है कि वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वरना हमारे लिए जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट? तो डिवाइन is running through the divine energy intelligence which is running through us, which is keeping us alive, is also managing the breathing. Now we come to, after these two stage, तो तीसरा जो लेवल है एग्जिस्टेंस का, that is our मन और मनस और इमोशन, राइट? उसके ऊपर हम थोड़ा सी पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारे इमोशंस का ही है। जो फियर की बात आई वो भी इमोशन है, राइट? और हमारे अधिकांश लेवल जो हैं लाइफ के, जो हमको परेशान कर रहे हैं, वो ज्यादातर इसी लेवल पे हैं, मन की बुद्धि, मन के लेवल पे, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मन एंड बुद्धि, ये थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को एक साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंगे। एंड उसके बाद चित्त है जो मेमोरी है, और उसके बाद अहंकार है जो ईगो है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक साथ हम बोलते हैं, ये आपकी इनसाइड वर्ल्ड है, ये आपके अंदर की दुनिया है। और यही अंदर की दुनिया को हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की दुनिया है, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हमारी मनोस्थिति सही होगी तो हम अपनी किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने पिछले हफ्ते भी लिया था, उसी को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे थर्ड लेवल जो है वो हमारा है मन। ओके, अब मन को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? ये ओवरऑल होलिस्टिक माइंड की बात नहीं करें, मनोमय कोश की बात नहीं करें, हम मन जो बोल रहे हैं, दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ मनस और इमोशंस। ओके, एंड ये जो मन है, इसके कुछ फंक्शनिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको मालूम होनी चाहिए कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसका रोल क्या है। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट दैट एंड देन वी विल सी कि कैसे हम अपने मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। और अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम यही है कि मन कंट्रोल के बाहर है, मन पे कंट्रोल होता ही नहीं है, राइट? तो हम थोड़ा सा इस पे इंक्वायरी करते हैं कि मन जो है हमारा, जो थर्ड लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसी के ऊपर हम शुरुआत करेंगे आज। और आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो इनसाइट्स मिल रहे हैं लाइफ को इफेक्टिवली कंट्रोल करके चलाने के लिए, ताकि लाइफ हमारे कंट्रोल में रहे, वो यहाँ से इनसाइट्स काफी मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। तो व्हाट डू यू थिंक, मन का फंक्शनिंग क्या है, या मन का पर्पस क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे, मन कैसे फंक्शन करता है? According to the situations. सिचुएशन आ जाएगी कुछ। अब मन का रोल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। I think mind wants to always go towards survival. Mind always wants to go for survival. Okay. तो Maybe अगर आपका I'm connecting mind and emotion. I think that's wrong somewhere. Okay. Man is emotion, right? Man We is are talking- emotion. Yeah. Yeah. Man is emotion. I'm asking you. So Yeah, it is. this is emotion. मनस जो हम बोल रहे हैं, it is the emotional center you can say, and Anahat chakra or the heart chakra is the emotional center. तो अगर आप मन को देखेंगे, मन जो इमोशंस है, उसका सेंटर जो एनर्जी लेवल पे है, वो आपका हार्ट चक्रा या अनाहत चक्रा है। तो दैट इज द इमोशनल सेंटर, करेक्ट? तो मन को हम इमोशन ही मान के चल रहे हैं, तो हम इमोशनल सेंटर जो है उसको कनेक्ट करेंगे मन से। दैट इज नंबर वन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इमोशन इज देयर। तो माइंड का, मन का एक रोल है कंट्रोलिंग द इमोशंस, और ऑल द इमोशंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी चक्र, दैट इज इट। और क्या है मन का फंक्शन, और क्या है मन का रोल, क्या है? मुझे लग रहा है सर, सर्वाइवल इज इन माइंड। Right. Survival. I agree with you, Kunjan. ओके, सर्वाइवल, लेट मी टेल यू। अभी सर्वाइवल को मत पकड़िए, माइंड अगर बोल रहे हैं तो माइंड में क्या बोल रहे हैं? माइंड हम जो बोलते हैं इंग्लिश में, जो माइंड बोल रहे हैं उसमें मन, बुद्धि, चित्त तीनों आ जाते हैं, क्योंकि मेमोरी को भी आप माइंड बोल रहे हो, इंटेलेक्ट को भी माइंड बोल रहे हो। तो मैं इसीलिए डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था, हम जहाँ मन बोल रहे हैं वहां पे हम सिर्फ इमोशन की बात कर रहे हैं। थॉट्स और इमोशंस स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी चित्त है। अगर इस एग्जिस्टेंस के हम लेवल पे चलेंगे तो स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज जो हम बोल रहे हैं वो चित्त है। इट हैज नथिंग टू डू विद मनस। ओके, And what would chit be in English? चित्त इज मेमोरी। Chit is memory. Okay. चित्त इज मेमोरी, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब ओवरऑल हम माइंड बोलते हैं तो मन, बुद्धि और चित्त को हम मिला के माइंड बोल रहे हैं इंग्लिश में। जब बॉडी, माइंड एंड सोल बोल रहे हैं, जब तीन लेवल का डिस्टिंक्शन है सिर्फ,
जब 3 लेवल का डिस्टिंक्शन है तो माइंड, बॉडी एंड सोल बोलेंगे। उस माइंड में आपका सब मिल जाएगा, मेमोरी भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा, करेक्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी आर फर्दर बाइफरकेटिंग इट, तब हम ये जो माइंड है उसको हम ब्रेक करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बोल रहे हैं। ओके, तो इसको 4 पार्ट में हमने कर दिया है। उसके बाद बॉडी अलग है और सेल्फ और सोल अलग है, वो अलग हमने अलग पकड़ा। तो बाकी सबको हमने अभी डिफरेंशिएट किया है, अंडरस्टैंड? तो कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें। अभी मैं बात कर रहा हूँ मन या इमोशंस जो है, मनस, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसका रोल क्या है। अगर ये क्लियर हो जाएगा देन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। अगर रोल ही क्लियर नहीं है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं कंट्रोल नहीं, क्लियर नहीं हो रहा सर। हाँ, अभी सिर्फ इतना समझिए, इमोशन है, इमोशन समझ में आ रहा है आपको? इमोशनल सेंटर है और हार्ट सेंटर या अनाहत चक्र जो है उसको हम इमोशनल सेंटर या मन का सेंटर बोल सकते हैं, which is true, which is correct understanding है ये, right? Now we are trying to understand more. हाँ जी नितेश। So emotions are to give us the spice of life, you know, where Yeah. we feel high and low. It makes us feel alive. Okay, yeah, बिना emotions तो एक connect थोड़ा सा हमारा नहीं होगा ना। बिल्कुल सही है। I don't know why they come, but this is what it does actually. That's fine. तो इमोशन इज एनर्जी इन मोशन एंड यू आर एनर्जी। हम एनर्जी हैं, ये तो क्लियर है, हम एनर्जी हैं और हमको जो मोशन चाहिए, एनर्जी को मोशन जो चाहिए, इससे इमोशन आता है। तो इमोशन होगा तभी आप एक्शन करेंगे, इमोशन नहीं होगा तो आप उसमें एक्शन नहीं होगा। तो एनर्जी इन मोशन, पहले आप एनर्जी हैं जो स्टिल हैं, इमोशन की वजह से एनर्जी मोशन में आती है, उसके बाद आप कुछ एक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए इमोशन इज वेरी वेरी पावरफुल इन गेटिंग रिजल्ट्स इन लाइफ। So if you have compassion is an emotion, right? If you have compassion, then you will do something great service for other people. For other people. If you're passionate about something, you will be working 24 hours a day, possibly. तो Yeah. वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इमोशन है, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है नितेश जी, आप सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसे। एनर्जी इन मोशन इज इमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइन। और यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये इमोशनल सेंटर आपका हार्ट सेंटर है, ये भी हम जानते हैं, राइट। और क्या रोल है, और क्या रोल है माइंड का, मन का, मनस, इमोशन, एनालिसिस। पास्ट या फ्यूचर में ज्यादा रहता है, प्रेजेंट में नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट या फ्यूचर में भागता रहता है मन। तो मन जो है इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थॉट्स एंड ऑल द इमोशंस which are talking us or taking us into the past or into the future. ये है उसका nature. That means it is never in the present. Mind is never in the present. That is the challenge that human beings face. मन को प्रेजेंट में रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि मन पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। और रोल क्या है उसका, थॉट्स और इमोशन। थॉट्स जो आते हैं और जो इमोशन आते हैं वो आपको पास्ट या प्रेजेंट में लेके जाएगा। दैट इज द रोल ऑफ द माइंड। Now if we know mind ये कर रहा है, now we can do something to stop it, correct? तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है। Thoughts and emotions which are taking us to past and future, this is the role and the functioning of the mind, our mind, correct? Good. और क्या है, और भी है, अभी तो एक ही लेयर पकड़ा है। Shashi, what Renu ji is saying, if I say in different words, मन बड़ा चंचल है। हाँ बिल्कुल, बच्चा है जी। मन तो बच्चा है जी, सुना है ना, वही है, एग्जैक्टली वही है। चंचल है, भागेगा इधर उधर, तो उसको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। जस्ट लाइक टॉकिंग टू ए 5-year-old, यू हैव टू टॉक टू योर माइंड लाइक ए 5-year-old। आपका माइंड है, आप ही उसे समझाओगे और कोई नहीं समझा सकता, करेक्ट? और बहुत प्यार से मानेगा, उसको प्यार से समझाना, दैट इज द वे टू हैंडल इट। नाउ वी आर हैंडल का खैर बाद में बात करेंगे, अभी संजीव ने छेड़ दिया तो बातों बातों में निकल आया, राइट? अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि माइंड का नेचर क्या है, व्हाट इज माइंड, उसका रोल क्या है, उसका नेचर क्या है, ये पता लग जाएगा, देन द थिंग इज क्लियर। जब पता ही नहीं है तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। ओके, सो गुड, एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ये थॉट्स और इमोशंस हैं जो हमको पास्ट या फ्यूचर में लेके जाते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। और हमारा चैलेंज है हम उसको प्रेजेंट में लेके आए, और इसी से मिलता जुलता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, है कि नहीं? ओवर थिंकिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम, एंड जो भी एंजाइटी में रहते हैं या वरी में रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 90% ऑफ देयर वरीज और एंजाइटीज नेवर हैपन इन देयर लाइफ। वो
कहानियां बनाए जा रहे हैं, ऐसा कभी ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा, बट then 90% ऑफ द वरीज डोंट हैपन, बट स्टिल दे वरी। आप प्रेशर कुकर की तरह जला के रखा हुआ है, सारे थॉट्स पक रहे हैं, और एक दिन बूम, माइंड में भूचाल आता है, सुनामी आएगा, बहुत कुछ आएगा। ओवर थिंकिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम। तो इसी थॉट्स और इमोशन से कनेक्टेड है, और हर थॉट के साथ कोई ना कोई इमोशन तो हमारा अपने आप वो जुड़ जाता है। कहाँ से आता है, जैसे अभी नितेश जी बोल रहे थे, पता नहीं, लेकिन वो आ जाता है। थॉट क्रिएट होता है, थॉट के साथ इमोशन भी आ जाते हैं, एंड देन इट सेटल्स डाउन इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी एज ए फीलिंग। और ज्यादातर इमोशंस जो है सर वो नेगेटिव ही आएंगे उसमें, पॉजिटिव थोड़े ज्यादातर वो जो आपके बैड एक्सपीरियंस होंगे वो जो आपको वो ज्यादा याद रहेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूंगा। मैं यहाँ आपने बोला मेमोरीज आ रही हैं, यादें आ रही हैं, तो मेमोरी वाला पार्ट हो गया। अभी सिर्फ मन को पकड़ना है आपको, मेमोरी वाला अलग रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी एक थॉट आया सिर्फ, शशि, अभी जो रेनू जी बोल रही हैं, डिपेंड करता है किस स्टेज ऑफ लाइफ में है। अगर इश्क के स्टेज में है तो कभी भी आपको नेगेटिव आएंगे, नहीं सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। सही है, बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। तो कमिंग बैक, तो थॉट्स जो आ रही हैं, पहले तो उस थॉट के साथ इमोशंस भी आती हैं। और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्या है, वी कीप थिंकिंग एंड बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माइंड इज जनरेटिंग लॉट ऑफ थॉट्स, which is a major problem for all the majority of the human beings की major problem है ये overthinking, right? Okay, और वो past या present में होगा, ये भी हो गया। further और सोचते हैं, और क्या है nature of mind, मन और क्या करता है, पास्ट में बहुत ज्यादा रहता है। वो बात हो गई ना हमारी, पास्ट या फ्यूचर में। हाँ जी। पास्ट या फ्यूचर दोनों में प्रॉब्लम करेगा, उसको प्रेजेंट में लाना है, दैट इज अ सॉल्यूशन। वो देखेंगे सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी और देखना, और क्या नेचर है मन का। मन जब ओवर थिंकिंग करता है तो क्या करता है, किस तरीके की ओवर थिंकिंग करता है। मान लीजिए आपको अभी कोई एक्शन लेना है आपको, ओके, अभी मैं क्या करूं, ये एक थॉट आया, ओके चलो आइसक्रीम खा लेता हूं। मैं जब से एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे थॉट प्रोसेस चलता, चलो आइसक्रीम खा लेता हूँ। नहीं, आइसक्रीम तो ठंडी होगी, अभी तो पता नहीं ठीक से जमी भी नहीं होगी, चलो गुलाब जामुन खा लेता हूँ। नहीं, गुलाब जामुन नहीं, वो मीठा हो जाएगा। बहुत बोला, अभी सुबह ही गुलाब जामुन खाया, तो अभी मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, अभी मैं कुछ और खाता हूँ। चलो जो वो छोड़ो, नमकीन खा लेता हूँ कुछ। अरे नहीं, ये नहीं, अच्छा अरे यार बॉस का फोन आना था, फोन तो किया ही नहीं मैंने काम ही नहीं किया, अरे मर गया। खाना वाना छोड़, फोन उठा बॉस को, नहीं बहुत डांट पड़ेगी, मैं नहीं करता। अब क्या करूँ, अपने दोस्त से बात करता हूँ, वो शायद हेल्प कर दे। नहीं, वो कभी कुछ नहीं, वो तो रोंदू है, वो रुलाएगा, पकाएगा मेरे को, मेरा आधा घंटा बर्बाद कर देगा, जिंदगी झंड हो जाएगी, मेरे को बात ही नहीं करनी उससे, वो तो गधा है। नाउ ऑल दीज थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड, करेक्ट? Causes a lot of confusion. कंफ्यूजन, वेरी गुड। सो माइंड के ओवर थिंकिंग से क्या होगा, कंफ्यूजन आएगी, और क्या होगा, इंडिसीजन होगा, और क्या होगा, Fear. Okay, that is the emotion which is coming with the thoughts. See, right now I am talking of thoughts. उस थॉट्स के साथ, हर थॉट के साथ या तो फियर होगा, या फिर एंजाइटी होगी, या कुछ और होगा, बट ओवर थिंकिंग चल रही है, विच मीन्स इमोशंस ट्रिगर होते रहेंगे, और आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, बीपी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपके माइंड में बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो रही है, तो थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं। अब कुछ पास में लेके जाएंगे, नहीं उससे बात नहीं करनी, उसने पिछली बार भी मेरे को धोखा दिया था, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, वो तो बल्कि कंप्लेन ही कर देगा बॉस से, तो मैं और फंस जाऊंगा। तो ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, रिलेटिव से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, बिजनेस पैसे से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं। उस फ्रेंड से बात नहीं करूंगा, ज्यादा उसने पैसे मांग लिए तो मैंने पैसे वापस करने हैं, मैंने उससे तो बात ही नहीं करनी मेरे को। दूसरे से बात करके देखता हूँ, नहीं वो शायद पैसे देगा नहीं, वो उसकी अलग प्रॉब्लम है, वो तो मेरे को अवॉइड कर रहा है। तो कोई आपको अवॉइड कर रहा है, कोई किसी को आप अवॉइड कर रहे हो, तो ये सारे थॉट्स जो हैं आ रहे हैं माइंड में। तो क्या हो रहा है, लाइफ का क्या हो रहा है, इंडिसीजन हो रहा है, करेक्ट, इंडिसीजन हो रहा है, और क्या हो रहा है, माइंड ऑप्शंस देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड माइंड का नेचर क्या है। इन एवरी थॉट माइंड विल गिव यू एन ऑप्शन, राइट और रॉन्ग? Yeah. Mind is generating options by generating thoughts, and the moment you are trained your intellect to take a decision, effective decision, fast decision, what will happen? जैसे आप कोई चीज डिसाइड करते हो, क्या होता है, अगले 1 मिनट में मेरे को क्या करना है, start happening,
things start happening before that. Things तो happen बाद में होंगे. So what happens when you take a decision? उसके नेगेटिव पॉजिटिव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. That is true. और क्या होता है उससे पहले, जस्ट उससे थोड़ा सा और पहले जाओ. थोड़ा पीस में आने लग जाते हैं हम लोग खुद ही. क्या आने लगते हैं? पीस में आने लग जाते हैं हम लोग. पीस में आने लगते हैं. ओके, पीस में आने लगते हैं. गुड. पीस में क्यों आने लगते हैं अगर मैं पूछूं? Because you have a firm mind. When you have a firm mind. सर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं. Absolutely perfect. थॉट्स क्रिएट करके ऑप्शन से 100 निकाल दिए हैं. माइंड ने डिसाइड किया मेरे को अभी फोन करना है बॉस को और उसको सॉरी बोल देता हूँ, बात खत्म. फोन उठाया और कर लिया. ये पहले थॉट आया. थॉट डिसाइड करते ही, जैसे ही बुद्धि ने डिसाइड किया कि मैं बॉस से बात करके उसको सॉरी बोल देता हूँ, ये डिसीजन जैसे ही लिया आपने बाकी सारे ऑप्शंस को किल कर दिया. जैसे ही ऑप्शंस को किल कर दिया माइंड शांत हो गया, क्योंकि माइंड का काम ऑप्शन जनरेट करना है बाय थॉट्स. सर यहाँ पर एक मिनट पहले लेट इट गो टू एवरीबॉडी फर्स्ट. सबको सिंक होने दीजिए पहले. हम बात क्या कर रहे हैं ये एक्सपीरियंशियली पकड़ना पड़ेगा आपको. थ्योरी पकड़ के फायदा नहीं है. आप सोचिए एक टफ सिचुएशन में आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्या हो रहा था? बीपी बढ़ रहा था, दिमाग खराब हो गया, दिमाग की दही बन गई बोलते हैं हम लोग, लस्सी बन गई, राइट? एंड द मोमेंट यू टेक ए डिसीजन यू हैव किल्ड ऑल द ऑप्शंस. इसीलिए उसको डिसाइड बोलते हैं. हाँ, सुइसाइड मतलब क्या होता है? यू किल योरसेल्फ. हाँ, पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? यू किल द पेस्ट. तो डिसाइड मतलब क्या होता है? यू किल ऑल द ऑप्शंस. Okay. So when you decide, you kill all the options and you take a decision, mind शांत हो जाएगा. So mind को शांत करने के लिए बहुत effective क्या होना चाहिए? You should have a mechanism, और वो सतबुद्धि होनी चाहिए to take the right decision or take a fast decision. तो overthinking automatically कम हो जाएगी. अगले 5 मिनट में क्या करना है? You have already decided. If you have not decided, you will be going all over the place. अब मालूम है 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, I have taken a decision, मेरे को यहाँ पे अभी अपना जूम सेशन करना है. माइंड शांत है ना, यहाँ पे अलर्ट है, यहाँ पे फोकस्ड है. तो माइंड भी फोकस्ड है, यहाँ पे बुद्धि अपना काम कर रही है. तो फोकस्ड अटेंशन, फोकस्ड रिजल्ट्स एंड ग्रेट अचीवमेंट होगी. मेकिंग सेंस? इफ आई गो ऑल ओवर द प्लेस, आई कांट कंडक्ट दिस सेशन. आई विल बी ऑल ओवर द प्लेस. मैं रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहा हूँ, किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ, एंड इट विल बी ऑल मेस्ड अप. तो माइंड बाय ओवरथिंकिंग जनरेट्स ऑप्शंस, एंड व्हेन यू टेक ए करेक्ट effective decision, you put the mind at rest. Making sense? Yes. Right. अब बताइए, आपको शेयर करना चाह रहे हैं. सर अगर हम कोई ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो he is not a good decision maker, तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होता है? होगा, बिल्कुल हो सकता है अगर आप अलाउ करेंगे तो. क्योंकि unknowingly भी इफेक्ट होगा, unknowingly भी इफेक्ट होगा. Okay, because I was a very quick decision maker some time ago, like last year you can say. I used to pray to God और मैं उनको बोलती थी I have not given you any option, you have to do this. So this was my prayer always. Sorry God, I am not giving you any option, you have to do this for me. So वो अपने आप manifest हो जाती थी चीजें. And from the past 4-5 months, I am with a friend who is not able to take any kind of decision. So let us first understand maybe how I the am decision-making process happens. So maybe I am catching his energy. You can, somehow. But you can always distinguish it also. It's not something that you can't stop. Since yesterday, जब से मेरी healing आपने start की है, तब से मेरे दिमाग में आने लग गया कि what is going wrong in my my thing, because I was a very quick decision maker. अभी इसी सेशन में ही मुझे क्लियर हो गया, कल से ही क्लियर हो गया था मुझे कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो 4 महीने से कैफे खोलने की कोशिश कर रहा है, बट उससे कैफे नहीं खुला. बिकॉज उसको कभी कुक की प्रॉब्लम, मतलब किसी चीज की मैं उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, कारपेंटर से लेके कुक से लेके हर चीज से, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन. एंड कल जब से मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई है तब से मेरे दिमाग में एकदम ही ये आया कि आई विल नॉट गो टू हिम नाउ बिकॉज ही इज नॉट अ क्विक डिसीजन मेकर. Okay, Gunjan ji, I will stop you right now. Okay? Yeah. Because
not because you are sharing something out of the context. बिल्कुल सही, आपने sharing अच्छा पकड़ा है, but I want you to get more insights into it. जी जी जी. Taking a quick decision and taking a bad decision can also be very, very, dangerous. So first you need to understand how it works. अभी हम सिर्फ nature of mind को पकड़ रहे हैं. आधी knowledge ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी. पूरी knowledge पकड़नी है. And by the way, जैसे आपने अभी बोल दिया है कि healing चल रही है, तो let the healing also, energies also settle down. It will calm your mind. It will calm your mind. It will give you the right options, and then you will be able to take the right decisions on the right options. And then you will take. So don't be in a hurry or don't be in a worry to take decisions fast. It will come to you. Intelligent divine will act through you and give you the right decision. तो थोड़ा सा time दीजिए, ठीक है ना? Take your time. You don't have to act in a haste. No, I won't. I won't. And particularly a particular situation में क्या करना है, that we can discuss it out also later on, one to one. Right? But right now you need to understand how the mind works and how intellect and mind combination can help you to move ahead in life. That is the point. तो point क्या है जो हमने यहाँ पकड़ना है? Mind options देता है बहुत सारे and can relate to overthinking. Decision लेते ही mind शांत हो जाएगा. तो mind को शांत करने का तरीका क्या है? सद्बुद्धि के साथ या बुद्धि योग जो हम बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें बुद्धि योग दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सही डिसीजन ले सकें. That will make the mind at peace. That will quieten the mind and bring the mind at peace. Point taken. यहाँ तक understanding clear है? जी. Right? Everybody clear for that? अगर यहाँ पे कोई confusion है understanding में, then you need to have a discussion with me. But ये understanding clear होनी चाहिए. Yes, Kavan. सर डिसीजन लेने के बाद भी माइंड विल स्टार्ट मींस क्रिएटिंग ए थॉट वेदर हैव वी टेकन द राइट डिसीजन, हमने कुछ गलती तो नहीं किया, क्या हो सकता है, फिर से वो थॉट शुरू कर देगा ना सर. तो माइंड को समझाना है. बच्चा है ना वो, तो 5 साल का, उसको समझाएंगे, क्योंकि बुद्धि जब डिसीजन ले रही है या तो वो माइंड की बात मान जाती है. सी अक्सर क्या होता है, अगर आपको एक अच्छे थॉट और एक बुरे थॉट दोनों आ रहे हैं, अच्छे थॉट मतलब अच्छा ऑप्शन और बड़ा बुरा ऑप्शन, क्या होता है? अच्छा ऑप्शन क्या होता है? रसगुल्ला है, खा ले, कुछ नहीं होता. तभी थॉट आता है, दूसरा थॉट आता है, नहीं, हेल्थ हैजार्ड है, नहीं खाना, बिल्कुल मीठा मना किया हुआ है, डायबिटिक्स लेवल बढ़ जाएगा. तो देयर इज अ टसल गोइंग ऑन. माइंड ने 2 ऑप्शन दिए, अब माइंड जस्टिफाई करेगा. जैसे ही माइंड 2 ऑप्शन देगा, माइंड उसको जस्टिफाई करेगा. किसको? स्पेशली द वन दैट इज हार्मफुल, नेगेटिव जो है. खाले कुछ नहीं होता, बहुत लोगों ने खाए हुआ है, तो 2 खाले को कुछ नहीं होता फर्क. या से 1 टैबलेट और खानी पड़ेगी, खा लियो, ठीक है. अब यहाँ पे अगर बुद्धि इज गाइडेड बाय द डिवाइन, बुद्धि योग है या सद्बुद्धि है, तो माइंड बुद्धि क्या कहेगी माइंड को? जस्ट शट अप बेटा, नहीं खाना, ठीक है. अभी आपको एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद आपको भी प्राणायाम करना है, और अच्छी बातें बताएगा. नाउ यू हैव टू टेक ए डिसीजन दैट बुद्धि व्हेन गाइडेड बाय द डिवाइन विल, दैट डिसीजन विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू. करेक्ट सर. तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है, शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं देखना. ये बुद्धि योग जब आएगा या सही सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो यही होता है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म गेन देखना है. तो डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द बुद्धि इन सच ए वे कि वो इनको बैलेंस करके सही डिसीजन ले सके. तब माइंड को समझाना पड़ेगा, बेटा अभी तुमको अक्ल आई नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ मान जाओ, एज अ 5 year old you have to teach him. वो क्लियरिटी आ जाएगी, उसे माइंड को लेके चलना है, पर साथ माइंड को डांट के नहीं चुप करा सकते, माइंड को समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि अभी कर लेते हैं ये सब. हाँ, तेरे को कल सुबह गुलाब जामुन मिल जाएगा, कल सुबह रसगुल्ला मिल जाएगा, एक दिन में 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे. रूल है, क्लियर है, ठीक है, गुड. तो माइंड समझ जाएगा. देन यू गिव, जो भी उसको डोज देना है दो, उसको जो प्रॉमिस किया है वो देना पड़ेगा, तभी माइंड समझेगा. धीरे धीरे उसको एक दिन, रोज एक की जगह पे 2 दिन में 1 बार करो, फिर 3 दिन में 1 बार करो, फिर हफ्ते में 1 बार करो. धीरे धीरे माइंड समझ जाएगा कि मिठाई कम करने से उसको फायदा है. राइट? तो दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेन योर माइंड. सो यू, दैट इज व्हाई माइंड को ट्रेन करना जरूरी है. माइंड को स्ट्रेन नहीं कर सकते. राइट, गुड. सो अगेन कमिंग बैक टू द नेचर ऑफ माइंड. तो हमने 2 चीजें यहाँ पे अभी नोट की. माइंड का पहला काम क्या है? माइंड का पहला काम क्या है? एनीबॉडी? Being in past, thoughts and emotions which are taking you to past and future. That is the first nature. Second, mind options देता है बहुत सारे.
एंड उस ऑप्शंस को डिसाइड जैसे ही बुद्धि कर लेती है फास्ट, माइंड शांत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नेचर क्या है माइंड का? माइंड और क्या करता है? माइंड और क्या करता है? ओवर थिंकिंग। वो तो बता बात हो गई हमारी, ओवर थिंकिंग से ऑप्शंस ज्यादा होंगे, वो भी बात हो गई। और क्या करता है माइंड? माइंड का नेचर क्या है? gives you a lot of makes you confused taking a decision. वो भी हो गई ना बात। ऑप्शन ज्यादा दे रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसे बुद्धि डिसाइड कर लेगी माइंड शांत हो जाएगा। ये भी डिसाइड हो गया। हाँ बिल्कुल, ये डिसाइड हो गया हमारा, ये डिस्कस कर लिया। और क्या? प्लेजर की तरफ ज्यादा भागता है सर, आराम की तरफ अपने। क्या 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 कम अगेन? आराम या फिर प्लेजर की तरफ ज्यादा भागता है। ओके ओके ठीक है। तो प्लेजर एंड अगर पेन की बात करें तो पेन से दूर भागेगा और प्लेजर की तरफ भागेगा। करेक्ट। तो इसमें अगेन माइंड को हमको कैसे समझाना है? सही बुद्धि जो होगी सही डिसीजन ले लेगी। जैसे अगर सुबह उठ के वॉक पे जाना है, जो जैसे रीमा जी बता रही थी, तो माइंड बोल सकता है अरे छोड़ दे यार, कोविड का टाइम है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीमार पड़ जाएगा, अलग चुपचाप बैठ जा, सो जाओ। हाँ, एक माइंड थॉट ये क्रिएट करेगा। दूसरा बुद्धि क्या बोल सकते हैं? मास्क पहन और ऐसी जगह जा जहाँ कोई ना हो, आधा घंटा वॉकिंग कर ले, ऑक्सीजन अच्छी मिल जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेट डिसीजन बुद्धि का लगेगा उसमें, राइट। तो अगेन यू हैव टू कम एंड टेक ए डिसीजन विच विल क्वाइटन द माइंड। तो बुद्धि ही माइंड को शांत कर सकती है। तो सही डिसीजन लेना इज द राइट वे ऑफ क्वाइटनिंग द माइंड। मेकिंग सेंस? यस, मेकिंग सेंस, राइट। और क्या नेचर है माइंड का? और कुछ है? जजिंग। हाँ, जजिंग। जजिंग, ओके। ये जजिंग असल में जो है माइंड नहीं करता है। कौन करता है ये जज? कौन करता है? विज्ञानमय कोश। जज कौन करता है? जो डिसीजन लेता है, बुद्धि। बुद्धि का काम है जज करना। बुद्धि का काम है जज करना। बुद्धि का काम है लेबल करना उसे। तो प्लेजर और पेन जो है ये बुद्धि लेबल करती है एक्चुअली, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है, सॉरी, प्लेजर एंड पेन जो है वो माइंड का फंक्शनिंग है, लेकिन डिसीजन उसको बुद्धि लेगी, तो वो उस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज जजिंग दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द बुद्धि। ठीक है। अब माइंड करता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। 5 सेंसेस के थ्रू बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करता है कि नहीं? ये माइंड का काम। बाहर कुछ अगर हो रहा है, बाहर की परिस्थिति को, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति जो है उसको पूरा एसेस करता है माइंड, मैसेज अंदर देता है, तो उसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है वो माइंड के रोल है। ओके। ऑब्जर्वेशन के बाद उसको जो ठप्पा लगता है कि ये पेन है या प्लेजर है, ये सिचुएशन जो है डेंजरस है या जो है, उसको जो असेसमेंट करनी है, ये भी माइंड का काम है। एंड देन थ्रू द माइंड आपके जो यानी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू इनपुट मिलता है और कर्मेंद्रियों के थ्रू जो एक्शन जाता है आउटपुट, वो भी माइंड का प्रोसेस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने कुछ देखा तो माइंड उसको इंटरप्रेट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद उसकी एनालिसिस भी माइंड कर रहा है, और उसके बाद जो एक्शन प्लान लेना है, एक्शन जो लेना है, यानी कि अगर भागना है या फिर कोई एक्शन करना है, वो भी माइंड का ही डिसीजन, माइंड का ही काम है। लेकिन इन सब को करते हुए जो डिसीजन लेना होता है वो बुद्धि का डिसीजन होता है। क्लियर है ये? तो माइंड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देना, बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे इमोशंस, ये सब जो है ये माइंड का फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन है। तो बॉडी से सटल ब्रेथ है, ब्रेथ से सटल मतलब और सूक्ष्म आपका मन है, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, और जैसे जैसे ये सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे इनका कंट्रोल दूसरे पे बढ़ता जाता है। तो आप देखेंगे मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है, करेक्ट? शरीर को कंट्रोल करने के लिए मन है। तो शरीर जो है हमारा मन से कंट्रोल होता है, मन कंट्रोल होता है बुद्धि से, ठीक है? और बुद्धि जो है, बुद्धि से भी ज्यादा सटल है हमारा ईगो, मेमोरी एंड ईगो, तो वो कंट्रोल करता है बुद्धि को। तो बुद्धि को वी हैव टू ट्रेन, एंड उसको सद्बुद्धि जो बोलते हैं, दैट विल विवेक जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, दैट विल हेल्प यू टू टेक द राइट काइंड ऑफ डिसीजन एंड कंट्रोल द माइंड।
Ultimately, we have to control the mind only, but it will come through the decisions made by the buddhi. Making sense? Yeah. Clear? Any doubts? Hello. Sir, in that case, in judging, we will be like judging black or white, or else means like a differentiation on the skin color, or else might be rich, poor. All this then buddhi is doing, sir. Then we have to take a decision through divine, buddhi through divine, or else not the divine. buddhi can It has to be buddhi will either for buddhi को कहाँ से मिलेगा इनपुट बताओ, या तो माइंड से मिलेगा या डिवाइन से मिलेगा, दो ही जगह से मिलेगा ना. ओ बुद्धि को भी इनपुट माइंड से मिलेगा. हाँ ओके. माइंड से ऑप्शंस मिल रहे हैं. अगर माइंड हावी है बुद्धि पे तो मन अपनी बात मनवा लेगा, फिर आप 3 गुलाब जामुन खा जाओगे और फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओगे. अगर मन की बात मान ली तो यही होगा. लेकिन अगर बुद्धि सही है, दैट मीन्स सही बुद्धि का मतलब क्या है, इट इज गाइडेड बाय द डिवाइन. तो वो डिवाइन से गाइडेंस लेके सही डिसीजन लेता है और मिठाई नहीं खाता है, दैट विल बी द राइट डिसीजन. बुद्धि हैज ओनली 2 ऑप्शंस ना. हमेशा देखो 2 ही ऑप्शंस अच्छे आते हैं माइंड में. अगर चल रहे होंगे थॉट 2 ही चल रहा होगा, सिगरेट पी ले या सिगरेट मत पी, ड्रिंक्स ले ले या ड्रिंक्स मत पी, मिठाई खा ले या मिठाई मत खा. यही 2 ऑप्शंस होते हैं. इसी तरीके से चलता है ना ऑप्शंस. Both this negative and positive would be given by buddhi only. By mind. Options are given by the mind. Decision will be taken by the buddhi. तो अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो माइंड की बात मान जाएगा. अगर बुद्धि डिवाइन के साथ सद्बुद्धि में है तो वो सही डिसीजन ले लेगा. In that case, he will not judge. All those things will be. So your consciousness, if it is going elevating और वो higher consciousness के साथ connected है, तो वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर सही डिसीजन ले लेगा. अदरवाइज वो बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर वो गलत डिसीजन लेगा, राइट. एंड देन इट विल एंड अप इन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. तो सही डिसीजन लेना सही जरूरी है. इसके लिए बुद्धि को सही दिशा में कनेक्ट करना जरूरी है, विच इज ओनली बुद्धि हैज टू कनेक्ट ओनली विद द डिवाइन. Sir, that means if we get a thought that जामुन काले कितने होगा, that means the buddhi is only telling, but which is not guided by the divine. Come again. What decision? In an example of this jamun, if a thought comes to us that जामुन काले, पहला हमको thought आएगा जामुन कालो क्या खाने से डायबिटीज आ जाएगा. फिर से एक thought आएगा जामुन काले कुछ नहीं होगा. So this thought would have come from buddhi itself, but not guided by the divine. कौन दे रहा है? Thoughts are coming in the mind. मन में मन ऑप्शंस दे रहा है ना. डिसीजन बुद्धि ने लेना है. हाँ, इसमें बुद्धि सर इसमें बुद्धि गाइडेड बाय डिवाइन का एक एग्जांपल बोले सर. एंड इफ नॉट गाइडेड बाय द डिवाइन क्या बोल? डिवाइन का मतलब क्या है कवन? डिवाइन का मतलब है बुद्धि इज टेकिंग द राइट डिसीजन, दैट्स ऑल. अब आप बताओ, किसी डायबिटिक पेशेंट को 3 गुलाब जामुन खाने चाहिए? नहीं. मीठा खाना चाहिए. तो राइट डिसीजन क्या है? नहीं खाना है. दैट्स इट. ओके. दैट इज द डिवाइन का कनेक्शन. डूइंग द राइट. सत्य और धर्म के मार्ग पे चलोगे तो डिवाइन का कनेक्शन है. राइट. इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. जरा सा आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं. बट अक्सर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत. अक्सर ये होता है हमको मालूम होता है कि ये गलत है, फिर भी हम रोक नहीं पाते क्योंकि वी आर स्टक इन आवर हैबिट्स. एवरीबॉडी नोज ड्रिंकिंग टू मच इज बैड, बट दे स्टिल गो एंड ड्रिंक. क्यों? नहीं कंट्रोल कर पा रहे. मेकिंग सेंस? तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जानबूझ के भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है, देन आप बर्बादी के रास्ते पे हो. तो मन को हावी नहीं होने देना. माइंड इज ए गुड सर्वेंट, इसीलिए बोलते हैं नॉट ए गुड मास्टर. माइंड को मास्टर बना लोगे वो मर जाओगे आप. माइंड हैज टू बी ए गुड स्लेव. इट हैज टू ओबे व्हाट द बुद्धि सेज एंड बुद्धि हैज टू बी गाइडेड बाय द डिवाइन. दैट्स हाउ द ऑर्डर इज. जस्ट लाइक द मैनेजिंग डायरेक्टर, then the general manager, and then the officer. Officer cannot tell the general manager what is to be done. General manager has to take instructions from the managing director. Then everything will be fine. That is exactly the same. Buddhi has to be taking decisions from the Atma or the divine. Correct? Correct, sir. Then telling the mind what is to be done.
and mind मान जाएगा. So you to understand it that. Okay. अब ये theoretically मत पकड़ना, अपनी लाइफ में देखो तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लोगे तो हाइपोथेटिकल ही रह जाएगा, वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं काम करेगा. वो सेशन खत्म होगा, आप भूल जाओगे. So don't go by hypothetical situation. Listen to your life. Take an example of your life, right? Then it will be clear for you. Okay, right. So now we are going to look more. हाँ जी नितेश. Pardon, I could hear you. आप म्यूट पे हैं. So I'm saying I often find myself taking decisions which I know are wrong, which lead me to pleasure, but I take them anyway. Right. So then it's a bad habit which I have to break. Correct. So now you will get some insights that you are following the mind. So it is like general manager following the instructions of the officer. Obviously, you are going to be in doldrums. You have to follow the instructions of the managing director. अपने ऊपर वाले को पकड़ना. ऊपर वाला कौन? अगर आप आत्मा हो तो आप परमात्मा की तरफ देखोगे. No, but what I understand is the brain releases dopamine for certain pleasure things, but just for the kick, we do that just to get that dopamine release or the pleasure in the brain. So उस वक्त mind जो है ना वो I don't find where the intellect I think somehow is subdued and this takes over. Technically अभी मत सोचो उसमें कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, वो बॉडी अपने आप काम कर लेती है. तो you don't have to worry about कौन से हार्मोन को अभी चलाना है. आप कभी सोचते हो कौन से सांस को अभी चलाना है? नहीं ना, खुद ही चलता है ना. वैसे हार्मोन भी खुद चल जाएंगे. डोंट वरी, डू द राइट थिंग्स, प्रोसेस सही रखिए, आपके रिजल्ट सही आ जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू गो कि अब मेरे को मेलाटोनिन जनरेट करना है, अब मेरे को एंडोर्फिन्स जनरेट करना है, कोई वो वैसा नहीं है. यू डोंट वरी अबाउट द हार्मोन्स विल बी टेकन केयर ऑफ. यू एंश्योर योर इंटरनल सिस्टम जो है वो कैसे ऑप्शन करना है. माइंड ऑप्शन दे रहा है, बुद्धि को अकल होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पकड़ना है और कौन सा ऑप्शन उसको ड्रॉप करना है. दैट्स इट. एंड द मोमेंट यू आर क्लियर ऑन दिस, बुद्धि विल बी एबल टू कंट्रोल द माइंड. Success of your life will depend how much control buddhi has over the mind. Simple है. संजीव यहाँ पे संजीव का एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, so I will ask संजीव to say that. वो below buddhi and at buddhi and above buddhi, so that is his favorite statement. So I leave it to Sanjeev to say that. No worries. Thank you, Ashashi. I was listening to all the conversation. It was interesting. Thanks, Nitesh, for asking this question. Simple है इसमें. अभी उसको शशि, instead of touching that right now because I think we are on the zone of closing time, I'll just say mind को ना दो लेवल पे ले जाते हैं, खाली दो चीज को टच कर लो आप. IQ versus EQ. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज हम सब समझते हैं. Right. हम लोग लाइफ में इंटेलिजेंस IQ को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, whereas our life is driven by EQ 90%, IQ just 10%. अगर आप सिर्फ इतने से बात को समझे नितेश, with your question you will get the answer simply that it's only and only EQ where we hardly focus. If we shift our focus towards EQ, आप देखो IQ तो उसके सामने just it's like a servant. And जो आपने शुरू में पॉइंट टच करा था, मन इमोशन है, ये EQ is emotion, और वो जो अगर आपने EQ पे फोकस कर लिया ना, everything is taken care of. That's all, nothing else. I'll keep it that simple today. Let me not confuse anymore. And Shashi has given such a simple language of everything. Focus only on EQ. और देखिए आप, you get the solution to each and everything. जो रेनू जी ने शुरू में क्वेश्चन करा था, जो उन्होंने अपने सिचुएशन बताया था, touched only the EQ aspect only. And you find what is EQ? Emotional quotient. IQ is intelligent quotient, EQ is emotional quotient. So 90% of our life is driven by EQ, 10% is IQ, whereas we have been taught all throughout our life that focus on IQ. और इसके बारे में जो शशि ने बोले 3 वर्ड में यूज करता हूँ, अगली बार for sure I'll share. You will understand what do I mean by this, EQ और IQ का difference क्या है. I'll share next time so that we have enough time to understand that for that. Okay, good. Thanks, Shashi. All right, great, Sanjeev. Thank you for sharing that. And before we end, I will just take a couple of minutes more to just answer that one particular question of Renu ji, जो उन्होंने बोला था कि fear
how do you, why does fear come, and where is fear coming from, and how can we handle that effectively? Okay, so without getting into the details, I will just try to answer that so that it gives you some kind of an answer, right? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो fear आ रहा है situation में, there is nothing bad about it, so you don't have to beat yourself up कि मेरे को डर क्यों लग रहा है. डर है, in fact the whole planet, जैसे अभी हमने बात करी, the whole planet is gripped in that emotion of fear right now, right? तो परिस्थिति में fear है, there is that energy of fear is outside, but that doesn't need to impact you. जैसे हम बात कर रहे थे, अगर कोई इंडिसीजन है, ले रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या कोई फियर में है, उसकी एनर्जी को कैच करने की जरूरत नहीं है. Individual consciousness or energy level can always be higher than the energy level of the society. ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो भी एनर्जी दे रही है, आप उस एनर्जी से ऊपर वाइब्रेट कर सकते हो, तभी तो आप ह्यूमैनिटी को हील करोगे. As a healer, you always have that option to vibrate at a higher frequency, right? तो फियर का तोड़ क्या है, मैं ये बता सकता हूँ. फियर को अगर आपने अवॉइड करना है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, मैं डिक्शनरी लेवल पे बात नहीं कर रहा, डिक्शनरी लेवल पे आप देखोगे फियर का ऑपोजिट क्या है, कोई बोलेगा फियर का ऑपोजिट है क्या, क्या बोलेंगे बताइए? फियर का ऑपोजिट करेज है, करेज है. फियर का ऑपोजिट कोई बोलेगा लव है, या तो ऑल दीस आंसर्स आर ट्रू. बट एनर्जी लेवल पे अगर आप बात करेंगे, फियर क्या है? फियर इज एब्सेंस ऑफ फेथ इन द डिवाइन. You are using your small little consciousness, अपनी थोड़ी सी छोटी सी इंटेलेक्ट को आप यूज कर रहे हो, and you are trying to think of whatever is going to happen without having any faith in the divine. That is my understanding of, you know, what is fear. तो fear को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना है? Increase your faith in the divine. वैसे भी 95% of the functioning of the physical body is taken care by the डिवाइन इंटेलिजेंस ही कर रही है. आपकी ब्रेथ कौन चला रही है? डिवाइन. आपकी बाकी लाइफ भी डिवाइन बहुत अच्छे से चला लेगी. यू हैव टू हैव फुल फेथ एंड सरेंडर इन द डिवाइन. फुल फेथ इन द डिवाइन एंड सरेंडर टू डिवाइन, योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को पकड़ के अपने दिमाग से बहुत कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं. जब बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, तब बोलते हैं कि हे भगवान बचाओ, और फिर वो भगवान बचा लेते हैं. ज्यादा अभी तक जिंदा है ना हम लोग, सो वी हैव मैनेज्ड इट. पहले अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ने किया था, सेम थिंग. हाँ, पहले अपना दिमाग सब कुछ लगा लिया, जब सब पिटपट गए, बर्बाद हो गए, तब कृष्णा के पास पहुंच गए. सेम थिंग विद द्रौपदी. पहले अपना पूरा कोशिश कर लिया, धृतराष्ट्र से रिक्वेस्ट कर ली, भीष्म से रिक्वेस्ट कर ली, सबसे रिक्वेस्ट कर ली. जब कुछ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ही सेड हे भगवान बचाओ, एंड देन ही सेव्ड. दैट इज एग्जैक्टली, आई मीन ऑफ कोर्स स्टोरी का मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है, don't worry about your fears. Your fears have no power in front of the faith. To increase your faith, your fears will vanish. और जो होना है वो तो होना ही है. परिस्थिति तो आएगी आएगी. पहला एरो है ना, बुद्धा का पहला एरो है, वो तो आना ही आना है. सेकंड एरो से आपने अपने आप को हर्ट नहीं करना. तो बाहर का फियर आ रहा है कि नहीं, जो संजीव ने पूछा था, फियर आ कहाँ से रहा है? बाहर से जो फियर आ रहा है उसको वहीं पे रखो, उसको लेने की जरूरत नहीं. अपना फेथ बढ़ा दो, सिचुएशन को आप मैनेज कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे. करेक्ट? सो डिड आई गिव यू सम काइंड ऑफ एन आंसर, रेणु जी? नहीं सर, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे अभी. क्योंकि कई दिन से ऐसा चल रहा है ना, कंटिन्यूअस कर रही हूँ इस तरीके से, सारा सुन रही हूँ, लेकिन कुछ भी जैसे कम सा लग रहा था थोड़ा. अभी ठीक है सर, थैंक यू सो मच. परफेक्ट रेणु जी. तो आप सबको, आपके फैमिली के लिए, हम सब लोग जो भी हीलर्स में हैं, ऑल द हीलर्स नोट डाउन, रेणु जी की फैमिली के लिए हीलिंग भेजना है, राइट? सो दैट दे रिकवर फास्ट. एंड आप तो खुद ही हीलिंग करेंगी, लेकिन वी विल आल्सो डू दैट, राइट? सो दैट इज इट. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? शशि, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर. नीरज जी यहाँ पर है, रेणु जी की फैमिली की कंडीशन, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जिसका हम नहीं भी जानते हैं. सो रेणु जी, आपके लिए मैंने एक अफर्मेशन आपके पर्सनल मैसेज में भेज दिया, वो देख लीजिएगा. I am also posting the same affirmation into this group, आपके ग्रुप में, DHV ग्रुप में. Okay, and this is the very powerful affirmation for all of us, for self. जिस भी कंडीशन में, great condition, to keep it great, and if it is at all something just to shift a little bit, we have to do that also, right? तो आप लोग सब उस affirmation को please follow करें. रूल एक ही है, whether whatever posture you are sitting, 21 times recite करना है, emotionally connect होके that affirmation per sitting.
आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हो. There is no limit to sitting, but per sitting. And the line says, Tony ji and everybody, you can hear this line: I safely remain open to all positive shifts in my life. Neeraj ji, you are already there. Carry this affirmation. You will get in the group. Okay. And इस लाइन को इमोशनली कनेक्ट करना है. लाइन का मतलब बहुत क्लियर है. I safely remain open to all positive shifts in my life, because जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट हो रहे हैं. उस पॉजिटिव शिफ्ट के लिए this affirmation has come as a divine message today only. ये हम लोग सब मिलके करेंगे. And I am just posting in the group. I have posted आपसे बात करते करते. And please get this message, follow this message, and for everybody, pass it to everybody. This is the thing which will keep us high at this moment. And each sitting has to be said 21 times. Each sitting, recite this statement emotionally connected 21 times. Okay. And number of sitting is no limit. As many times you can do it. Do it for self, do it for others. Okay. Thank you, Sanjeev. That is really great. And by the way, all the healers can use this affirmation and do all the healing methods that you are aware of. Okay. Absolutely. हाँ, जो भी हमने healing methods सीखे हैं उन सबको यूज कर सकते हो आप इसमें. And इस affirmation को आप powerfully manifest करिए. So that is very, very nice of Sanjeev to post that, right? Okay, good. This affirmation came from Atman, the initiator of Radical. So she gave this. So that's where it's a very powerful message got today only. Wonderful, very good. Yeah. Thank you so much. Yeah. Right. Okay, guys. So we have already overshot by 8 minutes. So I will not take much time. So anybody who has any last question to ask, otherwise we will wind up for the day today and close this session. So anything anybody wants to say, share, ask something. Everybody is okay with that? सबको क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? इसको जो अंडरस्टैंडिंग है कॉपी में नोट जो किया है कॉपी में मत रखिएगा, अपनी लाइफ में उतार दीजिए. पहले सुनिए, उसको अंडरस्टैंड करिए और उसको इतना प्रैक्टिस करिए कि you can actually implement that in your life. That is how you will get the benefits, right? So then you will get the wisdom in your life and you will be able to actually see in your life how your buddhi can control the mind and move ahead in life. So that is the basic learning of this session. Okay, good, great. So keep doing the healing, self-healing and healing others, and let's create a place where let's create a situation where people are recovering fast and moving onward in their life. Okay, so with this we come to the end of the session. Thank you very much. Thank you everybody. Enjoy a great day, enjoy a great life. Thank you, Let's sir. meet again next week. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you.